آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ ایران کے سپریم کمانڈر نے اپنے بیان سے مچائی ہلچل، نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا خامنئی نے دیا اشارہ۔ ایس سی او نے کی ایران پر حملے کی مذمت، سپریم لیڈر نے کھائی قسم، اسرائیل کے ساتھ امریکہ سے بھی لیں گے انتقام۔ اسرائیل کے وارشپ پر دکھائی دیا مصر کا جھنڈا، کیا جوائنٹ آپریشن کے لیے السیسی نے بھر دی نتن یاہو سے حامی۔ حزب اللہ کے حملے میں 19 اسرائیلی بری طرح زخمی، کئی کی حالت نازک۔ اسرائیل نے کیا دعویٰ، حزب اللہ کے نیول کمانڈر کو پکڑا، لیبنان نے کہا وہ سویلین شپ کا ہے کیپٹن۔ بی بی سی نے چھپائے اسرائیل کے ظلم تو 100 امپلائیز نے کھولا مورچہ، ڈائریکٹر جنرل ٹم ڈیوی کو لکھا کھلا خط۔ اور روس نے امریکہ کو دی سیدھی وارننگ، کہا ہوش کا جوشاندہ پیو، نیوکلیئر ہتھیار کا استعمال کر سکتے ہیں ہم۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ 2 نومبر 2024 ہے آج کی تاریخ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رات 10 بجے کا اسپیشل بلیٹن دنیا بھر کی خبریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ حزب اللہ نے حملے تیز کر دیے ہیں، اور جس طریقے سے حزب اللہ کی طرف سے پہلے بیان آیا تھا کہ اصلی ہتھیار تو ہم نے ابھی نکالے ہی نہیں، ابھی تو ہم تمہیں چیک کر رہے تھے، اب ہم تمہیں چوٹ پہنچائیں گے، اس طریقے سے لگ رہا ہے کہ پریس ٹی وی کی ہیڈ لائن بھی آئی ہے کہ اسرائیلی 19 انجرڈ ہوئے ہیں، 19 اسرائیلی انجرڈ ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں بری طریقے سے، اور کچھ کی حالت نازک ہے۔ یہ حزب اللہ کی تازہ حملوں کا اثر ہے، یہ اس کی ہیڈ لائن ہے۔ حزب اللہ نے فریش میزائل اور ڈرون اٹیکس زبردست طریقے سے اسرائیل پر کیے ہیں، اور اسرائیل کے اب سول علاقوں پر، سویلینز کے اوپر یہ قہر برپ رہا ہے۔ اسرائیل کے لیے بھی مشکل ہے، اسرائیل بھی سویلینز پر قہر برپا رہا ہے، لیکن اس کے حملوں میں زیادہ جانیں جاتی ہیں، چاہے وہ لیبنان میں ہو چاہے غزہ میں۔ لیکن پھر بھی اسرائیل جیسے ملک کے لیے، جس کے پاس اتنے بڑے بڑے نامی ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں، جس کا ڈھول ہمارے یہاں کے ڈھپالی بھی بجاتے ہوں، اس کے باوجود ڈرونز اور میزائل کا ہٹ ہو جانا بڑی بات ہے، اور اسرائیل کو اب اپنی ایئر ڈیفنس سسٹم کو اور مضبوط کرنا ہوگا۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ اور فلسطینی گٹوں نے آج قسم کھائی کہ وہ غزہ اور فلسطین، اس کی آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بالفور ڈکلیریشن کی آج 100 سے زیادہ 107ویں اینیورسری تھی۔ 107 سال پہلے فلسطینیوں کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ 107 سال پہلے بالفور ادگھوشنا، بالفور ڈکلیریشن کیا تھا؟ برٹش راج تھا۔ برٹش فارن منسٹر نے کہہ دیا کہ دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے ایک ملک ہونا چاہیے، اور وہ ہوگا فلسطین کی زمین پر۔ وہ زمین جس کو چھوڑ کر نہ جانے کس کس کے حملوں سے، مسلمانوں کے نہیں، نہ جانے کس کس کے حملوں سے کچھ علاقوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے جیوز، پرومس لینڈ کو، لیکن فلسطینی عرب جو تب بھی وہیں رہتے تھے اور شروعات سے وہیں رہتے تھے، اول روز سے وہیں رہتے تھے، وہ چھوڑ کر نہیں گئے اور اس کی حفاظت میں لگے رہے، اس زمین کی۔ ان کی زمینوں پر اب وہ جیوز بسائے جائیں گے جو دنیا میں پٹ رہے ہیں۔ یہ بالفور ڈکلیریشن ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے کیا ہے، آج پورا انفشار خلفشار جو کہہ لیجئے سب پھیلا ہوا ہے۔ بالفور گھوشنا کیا تھی؟ برٹش سرکار نے فرسٹ ورلڈ وار کے دوران جاری کیا تھا ایک سارجنک بیان 2 نومبر 1917 کو۔ اس گھوشنا میں فلسطین میں یہودی لوگوں کے لیے ایک دیش، ایک راشٹر، ایک اسٹیٹ بنانے کے لیے برٹن نے اپنا سپورٹ دیا تھا، اور یہ ویشوک راجنیتی میں پہلی ایسی گھٹنا تھی جب کسی اہم پاور نے آفیشلی ایک یہودیوں کے لیے ایک الگ دیش کی مانگ کی ہو۔ اب اس سے کیا ہوا کہ فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اس سے کیا ہوا، اس کو جو الائڈ تھے برٹن کے، امریکہ وغیرہ، ان سب نے اپنا سپورٹ دیا۔ پھر فلسطینیوں کے ساتھ ایک بڑا ظلم 1948 میں ہوا، 1917 کے بعد، جب اسرائیل نام کا ایک دیش ان کی زمین پر بن گیا۔ اسرائیل کا اپنا کہنا تھا، لیکن ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد جو نکبہ ہوا اور فلسطینیوں پر ظلم ہوا، قتل و عام ہوا، جو آج بھی ہو رہا ہے، اس سب نے یہ بتایا کہ برٹن اور امریکہ نے بڑی غلطی کر دی، لیکن اسے انہوں نے تسلیم نہیں کیا، حالانکہ اپنے ہاتھ کھینچ لیے، یوں ہینڈس اپ کر لیا برٹن 1948 میں۔ خیر، اب جو کچھ ہے سب کے سامنے، اور فلسطینی گٹوں نے کہا کہ یہ لڑائی اور 100 سال سے زیادہ کا جو ظلم فلسطینیوں پر چل رہا ہے، اس کے خلاف ہماری جنگ چلتی رہے گی۔ یہ المائدین نے ہیڈ لائن دی ہے، فلسطینی ریزسٹنس نے کہا ہم جھکیں گے نہیں۔ فلسطینی فیکشنز بہت سارے ہیں، ان سب نے
इजराइल स्टेट के खिलाफ जंग जारी रखने की बात कही। एक जहाज दिखा है जिसे देखकर लोग दहशत में पड़ गए, और ये एक वॉरशिप है, और वॉरशिप जहां तक है इजराइल का बताया जा रहा है, इस पर इजराइल का भी झंडा था और साथ में था झंडा मिस्र का, जिसके सदर आजकल अल-सीसी हैं। क्या अल-सीसी रजामंद हो गए हैं इजराइल के साथ? कोई मिलिट्री ऑपरेशन चलाने जा रहे हैं गजा के लोगों के खिलाफ या यमन के लोगों के खिलाफ? ये स्वेज कैनाल में, इजिप्ट की स्वेज कैनाल में ये जहाज दिखा। क्यों था मिस्र का झंडा? आप देख रहे हो, मैं और आपको मैक्सिमाइज कर रहा हूं, और इजराइल का झंडा। और इसके मैं ऑडियो आपको नहीं सुना रहा, लोग घबरा रहे थे। हो सकता है मैं अगले किसी वीडियो में इसको और तरीके से लूं और इसकी डिटेल्स अभी और आ जाएं। फिलहाल तो कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने छापकर और इस वीडियो को दिखाकर यही दावा किया जिसका आपने स्क्रीनशॉट देखा। बढ़ते आगे, लेबनीज मिनिस्टर ने कंफर्म किया है कि सिविलियन शिप का कैप्टन पकड़ लिया है इजरायली कमांडोज ने। सिविलियन शिप का कमांडो, वो कैप्टन, वो जो पैसेंजर अपनी ट्रेन नहीं होती आदमियों को ले जाने वाली एक मालगाड़ी, वैसे सिविलियन शिप यानी इंसानों को, आदमियों को ले जाने वाली शिप जो था उसका कैप्टन था, उसे पकड़ लिया कल। और इसके बारे में ये बताया गया कि इमाद अमहाज नाम है, ये कैप्टन है सिविलियन शिप के, और ये सिविलियन नेवल इंस्टीट्यूट में पढ़े लिखे हैं। इनको टाइम्स ऑफ इजराइल की दूसरी खबर में देखिए क्या बताया जा रहा है, ये उसी बंदे का फोटो है। हिजबुल्लाह ऑफिशियल कैप्चर्ड इज सीनियर मेंबर ऑफ टेरर ग्रुप नेवल फोर्स। हिजबुल्लाह की नेवी का ये सीनियर मेंबर है जो पकड़ा है, हिजबुल्लाह का ऑफिशियल। हमने ये ऐसे करके दे रहे हैं। लेबनान ने जो कहा है वो हमने आपको पहले बताया। आगे बढ़ते हैं सर, ईरान की खबरें आपके लिए आगे। इजराइल लगातार नॉर्थ गजा पर जुल्म कर रहा है। आज गजा की एक खबर, वहाँ पर लोगों को ज़ख्मी कर रहा है, मार रहा है। सेंट्रल गजा में, नॉर्थ गजा में बम्बार्डमेंट, मिसाइल। कल मैंने आपको बताया 84-81 लोग मरे, उसमें से सिर्फ 50 बच्चे थे। दिल लरसता होगा आपका भी सुनकर, इसलिए बस यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अलमायदीन की खबर, बीबीसी ने उस तरीके से खबरों को कवर नहीं किया जिस तरीके से उसे एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस होने के नाते करना चाहिए था। इजराइल के जुल्मों को और आईडीएफ के जराइम को इस तरीके से बीबीसी ने कवर नहीं किया, ना करने दिया अपने जर्नलिस्ट, अपने कैमरामैन को जिस तरीके से करना चाहिए था। एक तरफा नजरिए से किया कि कहीं हमने जिस मुल्क को पैदा कर दिया फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर बसाकर, हम कहीं उन्हें मुजरिम ना ठहरा दें, वो मुजरिम बन गए तो हम मुजरिम ठहरा दिए जाएंगे। तो इसके खिलाफ अब बीबीसी में काम करने वाले ही उतर आए हैं, उन्हें सलाम है मेरा। एज अ जर्नलिस्ट मैं समझ सकता हूँ ये कितना बड़ा रिस्क है, अपने करियर और अपनी नौकरी सब कुछ दांव पर लगाकर। उन्होंने बीबीसी के 22 जो उनकी पत्रकारिता है उसके खिलाफ मोर्चा खोला है। 100 लोगों ने अपनी नौकरी दांव पर लगाकर अपने डायरेक्टर जनरल को खत लिखा है, और सिर्फ ये 100 लोग तो बीबीसी के हैं, इसमें बड़ी तादाद है वो 250 से 230 मेंबर है टोटल। 230 लोगों ने बीबीसी को खत लिखा है, जिसमें 100 तो अकेले बीबीसी के कारिंदे हैं, और ये कहा है कि होश में आओ, दुनिया देख रही है जो तुम दर्ज कर रहे हो और दिखा रहे हो, दुनिया अलग से दर्ज कर रही है। अब वो बात नहीं रह गई कि लोग बीबीसी की रिपोर्ट पर यकीन कर लें। अब लोगों के पास सोशल मीडिया नाम का हथियार है, वो ये जानते हैं कब किसके झूठ को इस हथियार से मार कर गिरा देना है। कह रहे हैं होश में आओ, जो जैसा है वैसा रिपोर्ट करो। सर, ईरान की खबरों पर आते हैं। इजराइल ने दावा किया है जेरूसलम पोस्ट में, और ये दावा इजराइल नहीं कर रहा है, वॉशिंगटन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से यहाँ छापा जा रहा है कि इजराइल ने जो जवाबी हमला किया ईरान पर, उसमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल प्रोग्राम सीवियरली डैमेज हुए हैं, बुरी तरीके से उनको नुकसान पहुंचा है। ये दावा इजरायली अखबार अमरीकी अखबार के दावे से कर रहा है। तुम्हारे पास क्या रिकॉर्ड? कुछ नहीं है। फाइटर प्लेन्स चलो ठीक है इराक के हदूद तक रहे थे, कुछ तो होगा तुम्हारे पास, नहीं है। एससीओ ने इसी हमले की निंदा की है। एससीओ के मेंबर चाइना, रूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, इन सब लोगों ने मजम्मत की है ईरान पर इजराइल के हमले की। जल्दी बढ़े आगे। अली खामनेई साहब से
आयत उल्लाह अली खामनेई सुप्रीम कमांडर ऑफ ईरान से एक लड़के ने, उन्होंने आज लोगों ने मुलाकात की है, उन्होंने स्टूडेंट से मुलाकात की और उन्होंने जो पिछला बयान दिया, बड़ा बयान दिया, उस पर हमने पिछला वीडियो बनाया, वो भी देखिएगा। अली खामनेई साहब से एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या आपका नज़रिया कुछ बदल सकता है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर? अभी तक आप ये कहते हैं कि हम हथियार नहीं बनाएंगे और हम सिविलियन यूज़ के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे। तो सुप्रीम कमांडर का जवाब सुन लीजिए। ये ईरान ऑब्जर्वर जो ईरान की खबरें छापते हैं उनके हवाले से उनका दावा है, अखबार में मुझे नहीं मिला, अभी हो सकता है जल्दी डेवलप हो रहा। तो खामनेई साहब ने कहा वी विल डेफिनेटली डू एवरीथिंग दैट शुड बी डन, हम वो सब कुछ करेंगे जो करना चाहिए, जो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम उसे करेंगे, वेदर इन टर्म चाहे मिलिट्री का मामला हो, चाहे हथियारों का मामला हो, चाहे पॉलिटिकल अफेयर का मामला हो, चाहे किसी चीज़ का मामला हो, जिसकी भी ज़रूरत है हम उस पर काम करेंगे। और हमारी गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट, गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। कितना गोलमोल जवाब था, इनकार नहीं किया, लेकिन नाम ले लिया, चाहे मिलिट्री का मामला, चाहे हथियारों का मामला। तो एक तरीके से बंद लफ्ज़ों में इशारा दिया है, यस वी आर वर्किंग ऑन इट बेबी, तुम्हें दिखाएंगे बहुत जल्दी। खैर, आयतुल्लाह खामनेई, ये खामनेई साहब के लफ्ज़ नहीं थे बेबी, मेरे थे। आयतुल्लाह खामनेई ने यूएस को, इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब, कुचल देने वाले जवाब की वार्निंग दी है। इसके लिए पिछला वीडियो देखिए, बहुत लंबा वीडियो मैंने 8 मिनट का बनाया है, उस पर पूरी डिटेल है। उन्होंने ये कहा है कि इजराइल हो चाहे कोई हो, चाहे इजराइल के साथ देने वाले हों, वो याद रखें उन्हें बहुत बुरा जवाब मिलने जा रहा है, मिलने जा रहा है जी, मिलने जा रहा है। हम उन्हें, उनको हम मुंह तोड़ देंगे, जबड़ा तोड़ देंगे, ये कहा गया है इनके इस बयान में। बड़ा ख़तरनाक है भाई। और इसके बाद बहुत हलचल हो गई है मिडिल ईस्ट में, वो भी मैंने उस वीडियो में दिखाई है, उसकी भी डिटेल देख लीजिएगा। अमेरिका ने फ़ौरन B-52 बॉम्बर्स, फाइटर जेट्स, वॉरशिप्स, ये सब मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय करने के लिए बोल दिया है, हुक्म दे दिया है पेंटागन ने। और एयरक्राफ्ट कैरियर तो डिपार्ट हो चुका है, अमेरिका से निकल चुका जी। बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर में, मैंने इस खबर को लिया नहीं, कल से घूम रही है। बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर में जासूसी करने, डिटेल्स लीक करने, या यूं कहें कि जो मोसाद काम करता है दुनिया में रहकर, बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर में कोई मोसाद काम कर रहा था और सब बाहर बेचा जा रहा था चूरन के पर्चों में। तो बेंजामिन नेतन्याहू के इस दफ्तर में जासूसी को लेकर कई लोग, कई लोग पकड़े गए हैं। बहुत गहन पूछताछ चल रही है, सख्ती से लाल किया जा रहा है, पता चल रहा है, और उनसे पूछा जा रहा है कि इंटेलिजेंस हमारे दफ्तर की लीक कैसे हुई, क्या इंटेलिजेंस लीक हुई हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया है। बेंजामिन नेतन्याहू की भी किसी ने मूवी बनाई है कोई बातचीत करते पर, या कुछ और है, दस्तावेज हैं, पता नहीं। दुनिया की दूसरी तरफ की बात करते हैं, बोलीविया की बात कर लेते हैं। बोलीविया के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट जो 13 साल प्रेसिडेंट रहे, इवो मोरेल्स, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने 20 फौजियों को, बोलीविया के 20 फौजियों को कैद कर लिया है, क्योंकि मोरेल्स पर इलेक्शन लड़ने की पाबंदी लगी हुई है, लेकिन वो 2025 का इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, लिहाजा बड़ी उठक पटक जो है वो बोलीविया में चल रही है। 20 फौजी फिलहाल अब मोरेल्स के सपोर्टर्स के कब्जे में हैं। देखना है ये सिचुएशन आगे और कैसे एस्केलेट होती है। रूस ने कहा है अमेरिका से, ये होश का जोशांदा पियो, हर वक्त नज़ले में रहते हो, हम न्यूक्लियर लाइन को क्रॉस कर सकते हैं, हमने जो कहा है हम बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, भूल जाओ इसे, ये हमेशा के लिए थोड़ी ना है, जब हमारे वजूद को ख़तरा होगा हम करेंगे। और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे वजूद को तुमसे ख़तरा होने वाला है, क्योंकि तुम मान ही नहीं रहे। तो रशिया विल क्रॉस द न्यूक्लियर लाइन इफ इट्स एग्जिस्टेंस इज थ्रेटेंड। अगर हमारे वजूद को ख़तरा हुआ तो याद रखो कि न्यूक्लियर हथियार हमने सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बनाए हैं, चलाने के लिए भी बनाए हैं। सीनियर रशियन सिक्योरिटी ऑफिशियल और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, दिमित्री मेदवेदेव, इन्होंने ये बात कही है और इन्होंने कहा है कि याद रखना चाहिए अमेरिका को कि वो रूस से बात कर रहे हैं।
14 लोग मारे गए हैं सर्बिया में। आखिरी खबर है, सर्बिया में एक ट्रेन स्टेशन की छत गिर पड़ी जिसकी वजह से वहां खड़े 14 लोग मारे गए, कई लोग जख्मी हो गए। ये थी दुनिया भर की खबरें। उम्मीद करते हैं आपको कोशिश पसंद आई होगी। खुश रहिए, सलामत रहिए, मजलूमों के लिए दुआ करते रहिए।